Hello students, welcome to M2L. Remember, together we read, we learn, we can. आज हम आपका जो इंग्लिश सैम्पल पेपर है क्लास 10th का लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, ये CBSE ने आपका टर्म 2 के लिए अपलोड किया हुआ है, तो इसे आज हम करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। तो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो इसमें दी हुई हैं उसे एक बार पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। तो इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर का। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट के लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी, आपको उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए, आपका सेक्शन ए है रीडिंग का, वो 10 मार्क्स का है, तो उसे पहले पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले पैसेज में क्या करना है, अगर आपके पास आ जाता है रीड द पैसेज गिवन बिलो, तो सबसे पहला काम जो आपको इसमें करना है, आपको सबसे पहले इसको फर्स्ट रीडिंग देनी है। आप एक रीडिंग इसको देंगे बिना किसी मीनिंग के बारे में सोचे हुए। अभी आप सिर्फ इसको एक बार रीड करेंगे, तो हम पहले इसको एक बार सिर्फ रीड करेंगे, उसके बाद हम इसमें वर्ड मीनिंग्स पे जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले रीडिंग लगाते हैं, और मैं सभी बच्चों से कहूँगी कि साथ साथ मेरी रीडिंग लगाएं और वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स का जो बोलने का तरीका है, उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट्स एट अ रैपिड रेट बट एट द कॉस्ट ऑफ अ वैल्यू ट्रेडिशन, द क्राफ्ट्स इंडस्ट्री. The traditional crafts industry is losing a lot of its trained and skilled craftsmen. With that, the art of embellishing brass and copper utensils with fine engravings is also disappearing. The government has identified around 35 crafts as languishing craft. The speciality of handicrafted items is its design and association with long traditions belonging to a specific region. The word handcrafted does not imply the involvement of dexterous human fingers or an agile mind with a moving spirit anymore. Lessening drudgery, increasing production, and promoting efficiency have taken precedence. The labor-saving devices are taking the place of handcrafted tools, and this has jeopardized the skills of these artisans. Mechanization has made its way into everything: cutting, polishing, edging, designing, etc. Ideally, the use of machinery should be negligible and the handicrafts should be made purely by hand with a distinguishable artistic appeal. However, with the exception of small-scale industries, the export units are mostly operated by machines. The heavily computerized design contribute to a faster production at lower costs. Although mechanization of crafts poses a challenge to safeguarding traditional crafts, the artisans are lured with incentives in order to impart handicrafts training. Some makers do see machines as a time-saving blessing, since they are now able to accomplish difficult and demanding tasks with relative ease. These machines might give a better finesse to these products, but they don't stand out as handcrafted. Quantity has overtaken quality in this industry. A need to highlight the importance of the handmade aspect is required by both the government and private sectors in order to amplify awareness and also support the culture of making handicrafts. A few artisans are still trying their best to rejuvenate and revive their culture and heritage, but it's an uphill task competing with the machine-made goods. A multitude of artisans have changed their profession and are encouraging their progeny to follow suit. There are others who have stayed their ground but are clearly inclined towards buying machines. Nearly 2 decades ago, there were around 65 lakhs artisans in this country. 3 years ago, when the government started the process of granting a unique number to the artisans based on the Aadhaar card, 25 lakh were identified. Lots of traditional crafts is clearly a worrying issue, but it stands to reason that forcing any artisan to follow old ways when concern of livelihood overrule their other considerations is unfair. ये आपका पैराग्राफ पूरा हो गया है। अब जब आपने बच्चों ये पैसेज पढ़ा, तो आपने सबसे ज़्यादा इसमें क्या चीज़ पढ़ी? बार बार जो वर्ड आ रहा था,
क्या आ रहा था? हैंडक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडक्राफ्टेड, मैकेनाइजेशन, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पैराग्राफ है ये आपका हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि क्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में है। अब इसको विद मीनिंग पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट एट अ रैपिड रेट बट एट द कॉस्ट ऑफ अ वैल्यूड ट्रेडिशन। ये किसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत तेजी से, रैपिड रेट का मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बट एट द कॉस्ट ऑफ अ वैल्यू ट्रेडिशन। जो हमारे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन, परंपरागत चले आ रही है, उसको दांव पर रखकर आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी। और वो कौन सा ट्रेडिशन बता रहा है? क्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि हस्तशिल्प की जो इंडस्ट्री, उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग है जो हमारा। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इंडस्ट्री इज लूजिंग अ लॉट ऑफ इट्स ट्रेन्ड एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक हमारी हस्तशिल्प उद्योग है वो बहुत सारे ट्रेंड यानी कि निपुण और कुशल जो क्राफ्ट्समैन, कारीगर हैं, उनको खो रहा है। विद दैट, इसके साथ ही द आर्ट ऑफ एम्बेलिशिंग ब्रास, एम्बेलिशिंग ब्रास का मतलब होता है जिसमें आप पीतल के बर्तनों को सजाते हैं, तरह तरह से बनाते हैं उसको, एंड कॉपर यूटेंसिल्स यानी कि तांबे के बर्तन, विद फाइन एंग्रेविंग्स, जो उस पर बहुत ही ज़्यादा बारीकी से नक्काशी की जाती है। एंग्रेविंग्स इज नक्काशी, इज ऑल्सो डिसअपियरिंग। तो उस पर जो बारीक तरीके से नक्काशी हाथ से की जाती थी वो भी धीरे धीरे चलन जो है वो गायब होता जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड अराउंड 35 क्राफ्ट्स एड लैंग्वेशिंग क्राफ्ट। लैंग्वेशिंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा हो। तो हमारी जो सरकार है उसने इसी तरह के जो 35 हस्तशिल्प उद्योग हैं उनको पहचाना है जो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। द स्पेशलिटी ऑफ हैंडक्राफ्टेड आइटम्स इज इट्स डिजाइन एन एसोसिएशन विद लॉन्ग ट्रेडिशन बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक रीजन। कोई भी हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई कोई भी चीज़ होती है, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? उसका डिज़ाइन। और उसका डिज़ाइन वो कहाँ से बिलोंग करता है, या उस डिज़ाइन को देखकर आप कैसे पता लगा लेते हैं कभी कभी कि वो कहाँ से बना हुआ है? तो क्या होता है कि जिस क्षेत्र में उस हस्तशिल्प का काम चल रहा होता है उसमें उस स्पेसिफिक रीजन की, उस विशेष क्षेत्र की जो खूबी है वो दिखाई देने लगती है। द वर्ड हैंडक्राफ्टेड डज नॉट इम्प्लाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेक्स्ट्रस ह्यूमन फिंगर्स। जो हैंडक्राफ्ट यानी कि हाथ से हस्तशिल्प का जो वर्ड है, जो शब्द है, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा निपुण और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती हाथों का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हैंडीक्राफ्ट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बहुत सारे निपुण लोगों ने अपने हाथों से इसे बनाया, और एन एजाइल माइंड, एजाइल मतलब फुर्तीला, और एक बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड इंसान ने और बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले इंसान ने इसे बनाया, विद अ मूविंग स्पिरिट एनी मोर, और बहुत ही ज़्यादा मन से उसे बनाया। तो जो हैंडक्राफ्ट, हस्तशिल्प का जो शब्द है वो सिर्फ यही सब नहीं रह गया है। लेसनिंग ड्रेजरी, ड्रेजरी का मतलब होता है कठिन परिश्रम, यानी कि जैसे जैसे कठिन परिश्रम कम होता जा रहा है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जो उसकी पैदावार है, यानी कि जिस जिस तरह से प्रोडक्ट्स को, हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। एंड प्रमोटिंग एफिशिएंसी हैव टेकन प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है उसको पहले दे दी जाना, पहल दे दी जाना, प्राथमिकता दे दिया जाना। तो क्या करते जा रहे हैं कि मेहनत तो घटती जा रही है, मेहनत घट रही है, प्रोडक्ट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, और जो एफिशिएंसी है वो भी, जो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि चीज़ अच्छी भी बन रही है, उसको जो है वो पहल मिलती जा रही है। द लेबर सेविंग डिवाइसेज आर टेकिंग द प्लेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट टूल्स एंड दिस हैज जेपर्डाइज्ड द स्किल ऑफ दीज आर्टिसंस। जेपर्डाइज का मतलब होता है खत्म करते जाना। आर्टिसंस होते हैं जो कि मिस्त्री, कारीगर, जो भी ये काम करते हैं, जो हस्तशिल्प का काम करते हैं। तो क्या कह रहा है कि लेबर सेविंग डिवाइसेस, तो ये जो मेहनत कम करने वाली जितनी भी मशीनें अब बन रही हैं और वो हैंडक्राफ्टेड टूल्स की जगह लेती जा रही हैं। तो पहले क्या करते थे, पहले तो छेनी से, हथौड़े से धीरे धीरे बारीकी से करके लोग बनाते हैं ना अपने हाथों से, तो उनकी जगह क्या है, मशीनों ने ले ली है। तो उसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि जो एक्चुअल उनके हाथों का टैलेंट है वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। मकैनाइजेशन, मकैनाइजेशन होता है आपका मशीनीकरण, हैज़ मेड इट्स वे इनटू एवरीथिंग। तो मशीनीकरण जो है वो हर चीज़ में घुस गया है। कटिंग, पॉलिशिंग, एजिंग, डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा। तो किसी चीज़ को कटिंग करनी है, अब बड़ी बड़ी मशीनें देखो, पीतल, सोना, लोहा सब काटना होता है, उसके लिए मशीनें हैं। पॉलिश करने के लिए मशीनें हैं, उसको मतलब नुकीला करने के लिए, शार्प करने के लिए मशीनें हैं, उसका डिज़ाइन करने के लिए मशीनें बनी हुई हैं। आइडियली द यूज़ ऑफ मशीनरी शुड बी नेग्लिजिबल।
वैसे तो देखा जाए तो मशीनों का प्रयोग जो है वो ना के बराबर करना चाहिए। एंड द हैंडीक्राफ्ट शुड बी मेड प्योरली बाय हैंड विद अ डिस्टिंग्विशेबल आर्टिस्टिक अपील। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि वैसे देखा जाए, आदर्श रूप से देखा जाए तो मशीनों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। और जो हैंडक्राफ्ट नाम से आप चीज़ को बेच रहे हो, कि आप कह रहे हो कि हैंडक्राफ्ट है, तो वो पूरी तरह से हैंडक्राफ्ट ही होनी चाहिए। उसमें उस हस्तशिल्पकार का काम होना चाहिए जिसमें कि वो डिस्टिंग्विशेबल आर्टिस्टिक अपील, यानी कि अपनी जो पहचान है, अपनी जो कला है वो साथ में डाल सके। डिस्टिंग्विशेबल जो अलग से दिखाई देती है, तो ऐसी जो कला है जो उसके हाथ में ही है सिर्फ, वो उसको डाल सके। तो इस तरह से मशीनों का प्रयोग ना करके हस्तशिल्पकार के हाथों का प्रयोग होना चाहिए वैसे तो, आदर्श रूप से देखा जाए तो। हाउएवर, लेकिन हालांकि विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल जो लघु उद्योग आ गए हैं, लघु उद्योगों के साथ में द एक्सपोर्ट यूनिट्स आर मोस्टली ऑपरेटेड बाय मशीन्स। अब जो छोटे छोटे उद्योग लोगों ने लगा लिए हैं उसमें क्या करते हैं लोग कि एक्सपोर्ट यूनिट जब बाहर भेजना होता है सामान, तो ज़्यादातर क्या है कि मशीनों से ऑपरेट करने लग गए हैं। द हैवीली कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फास्टर प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के थ्रू काम होता है, तो उससे क्या होता है कि डिज़ाइन बनाने में, हाथ से डिज़ाइन बनाने में टाइम लगता है, कंप्यूटर से डिज़ाइन बन जाता है आधे टाइम में। तो उसमें क्या हो गया कि टाइम कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी लेवल पर प्रोडक्शन हो जाती है, वो चीज़ें बनने लगी हैं। Although mechanization of crafts poses a challenge to safeguarding traditional crafts, हालांकि जो मशीनीकरण है उसने एक चैलेंज दिया है सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। जो हाथ से बनने वाली चीज़ें थी उसमें जो परख दिखाई देती थी कि ये चीज़ हाथ से बनी, उसमें जो मेहनत थी, उसको पारंपरिक कला को बनाए रखने के लिए, जो पारंपरिक कला को बनाए रखना इतना मुश्किल होता जा रहा है मशीनीकरण की वजह से। द आर्टिसंस आर ल्योर्ड का मतलब है लालच में खींचे चले आना। जो कारीगर हैं वो खींचे चले जा रहे हैं, लालच में पड़ रहे हैं। किस चीज़ के? विद इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होता है जब आपको एक कुछ एक्स्ट्रा इनकम दे दी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है देना। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग। तो अब क्या कर दिया गया है, हालांकि ट्रेडिशनल क्राफ्ट को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कारीगर जो हैं वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में क्या है, वो इम्पार्ट ट्रेनिंग दे देते हैं। अपने जो कला है, उनके पास जो कला है, उनके पास जो स्किल है, जो शिक्षा है, उसको वो दूसरों को सिखाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं और सिखा रहे हैं। सम मेकर्स डू सी मशीन्स एज अ टाइम सेविंग ब्लेसिंग। कई जो बनाने वाले हैं, चीज़ें बनाने वाले हैं, वो देखते हैं मशीन को कि हाँ भाई इससे समय बचता है। सिंस दे आर नाउ एबल टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग टास्क विद रिलेटिव ईज। अकम्प्लिश का मतलब उसको हासिल कर लेना, और ईज का मतलब होता है आसानी से। तो कुछ लोग देख रहे हैं कि हाँ मशीनों से भैया बहुत टाइम बचता है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, और बड़ा से बड़ी डिमांड जो है कि भाई बहुत सारे सामान की डिमांड आ गई है, उसको कम टाइम में पूरा करना है, तो उसके लिए मशीनें सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो अब लोगों को आसानी होने लगी है इस काम में। दीज मशीन्स माइट गिव अ बेटर फिनिश टू दीज प्रोडक्ट्स। और मशीन से जो उसकी जो एक चमक आती है ना लास्ट में, जो उसकी खत्म होने पर फिनिश होता है, कि खत्म होने पर जो उसका लुक बनता है चीज़ का, तो वो मशीन से बेहतर आ जाता है। बट दे डोंट स्टैंड आउट एट हैंड क्राफ्टेड। लेकिन आप उसे हैंड क्राफ्टेड नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि वो हाथ से बनाई गई है या हस्तशिल्प का प्रोडक्ट है ये। क्वांटिटी हैज़ ओवरटेकन क्वालिटी इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के आने के कारण, मशीनीकरण के आने के कारण, जो क्वांटिटी है, जो चीज़ों की मात्रा है, उसने उस चीज़ों की जो गुणवत्ता है उसको भारी कर दिया, उसके ऊपर भारी पड़ गई है। यानी कि अब क्वांटिटी ज़्यादा मांगने लगे हैं लोग, तो क्वांटिटी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो लोग गुणवत्ता नहीं देखते, ये देखते हैं कि कितनी मात्रा में चीज़ बनाई जा रही है। अ नीड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैंडमेड आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। इज रिक्वायर्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अब एक ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हाथ से बनी हुई चीज़ों की तरफ का जो पहलू है, हाथ से बनी हुई चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है, उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इस बात को इम्पोर्टेंस से ले रहे हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई अवेयरनेस, क्यों? लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। एंड ऑल्सो सपोर्ट द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स। और जो हमारी संस्कृति है, जो हस्तशिल्प की संस्कृति है, हस्तशिल्पकारों के पास जो स्किल है, जो उनके पास ताकत है, जो टैलेंट है, उसको बनाए रखने के लिए। अ फ्यू आर्टिसंस आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिजुविनेट एंड रिवाइव देयर कल्चर एंड हेरिटेज। बहुत कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो आज भी
उसे ही दोबारा खड़ा करने की, रिज्यूविनेट होता है दोबारा उठाकर खड़ा करना, और रिवाइव होता है पुनर्जीवित करना। कल्चर इज आपका संस्कृति एंड हेरिटेज इज विरासत। तो कुछ कारीगर ऐसे हैं जो आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो विरासत और उनकी संस्कृति है उसको पुनर्जीवित किया जाए, बट इट इज़ एन अपहिल टास्क, यानी लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है। कंपीटिंग विद द मशीन मेड गुड्स, मशीन से बनाई हुई चीज़ों के साथ कंपटीशन करना इतना आसान काम नहीं है। अ मल्टीट्यूड ऑफ आर्टिसंस, बहुत सारे जो कारीगर हैं, हैव चेंज्ड देयर प्रोफेशन, उन्होंने अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया है। एंड आर एनकरेजिंग देयर प्रोगिनी, और अपने बच्चों को भी वो वही करने की सलाह दे रहे हैं। देयर आर अदर्स हु हैव स्टेड देयर ग्राउंड बट आर क्लियरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स बाइंग मशीन्स। इंक्लाइंड का मतलब होता है उस तरफ झुक जाना। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने ग्राउंड पर टिके रहे हैं, यानी कि इसी बात पर टिके रहे हैं कि नहीं हम हस्तशिल्प की तरफ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जो है मशीनें खरीदने की तरफ झुक जाते हैं। Nearly 2 decades ago, there were around 65 lakh artisans in the country. 20 साल पहले, 2 दशक पहले, यानी कम से कम 20 साल पहले हमारे जो देश में 65 लाख हस्तशिल्पकार थे। 3 साल पहले जब गवर्नमेंट ने when the government started the process of granting a unique number to the artisans, जब सरकार ने ये चलाया कि हम हर एक हस्तशिल्पकार को, हर एक कारीगर को एक यूनिक, एक अलग सा नंबर देंगे। किसके बेस पर? उनके आधार कार्ड के बेस पर। तो पता चला कि 25 लाख वर आइडेंटिफाइड, तो उनमें से केवल 25 लाख को ही पहचाना जा सका। 25 लाख लोगों को ही वो नंबर मिला। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट इज क्लियरली अ वरिंग इशू। हमारी जो पारंपरिक हस्तशिल्प की कला है उसका धीरे धीरे कम होते जाना वाकई में एक चिंताजनक बात है। बट इट स्टैंड्स टू रीजन दैट फोर्सिंग एनी आर्टिसन टू फॉलो, लेकिन ये बात भी सही है कि किसी भी कारीगर को टू फॉलो ओल्ड वेज व्हेन कंसर्न्स ऑफ लाइवलीहुड ओवर रूल अदर कंसिडरेशंस इज अनफेयर। लेकिन ये भी गलत है कि अगर आप किसी कारीगर को कहते हैं कि आपको पुराने तरीकों से ही हस्तशिल्पकारी करनी है, जबकि उसको उस बात के लिए उसके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपनी आजीविका ढंग से नहीं चला पा रहा है, वो जीवन यापन ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो और बातों को ध्यान में रखकर ये जो ज़रूरत है वो ओवर रूल कर जाती है, यानी कि उसको दबा जाती है। तो ये भी गलत है कि हम किसी को फोर्स करें कि नहीं आप पुराने तरीके से ही करिए, जबकि उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो ये आपका हस्तशिल्प कला और हस्तशिल्पकारों की जो जीवन है यापन है, उनकी कठिनाइयाँ और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस पैराग्राफ में बताई गई है। अब आगे इसमें आपको दिया हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। अपनी समझ के हिसाब से आपको जिनसे 6 सवाल जो दिए गए हैं उनमें से आपको किसी 5 के जवाब देने हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यू ट्रेडिशन। जो राइटर है वो जब हैंडीक्राफ्ट्स को, हस्तशिल्प को एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा बता रहा है, उस बात से उसका क्या मतलब है। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रेन्ड एंड स्किल क्राफ्ट्समैन। जो हस्तशिल्प उद्योग है उसमें बहुत ही सारे निपुण और बहुत ही प्रशिक्षित जो हैं वो उसके कारीगर हैं, काम करने वाले हैं, हस्तशिल्पकार हैं। एंड इज़ वैल्यूड, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बिकॉज दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ क्राफ्ट्समैन ड्यू टू देयर शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बहुत सारे जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्प उद्योग है वो अपने बहुत सारे कारीगरों को खो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं इनटू दोज दैट गिव देम अ बेटर सोर्स ऑफ इनकम। ऐसी जगह वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ऐसी जगह वो नौकरी ले रहे हैं जो उनको ज़्यादा अच्छी कमाई दे सके, जिससे वो अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेजेस विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन 5 to 15। तो ये कह रहा है कि नीचे वाली जो लाइंस लिखी हैं, इफ इट कंटिन्यूज द वर्केशन प्लस ब्रैकेट वर्क प्लस वेकेशन ट्रेंड विल बी अ पावरफुल बूस्ट टू डोमेस्टिक टूरिज्म ऑपरेटर्स फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक स्लम्प कॉज्ड ड्यू टू द पेंडेमिक। तो आपकी अंडरलाइन लाइन कौन सी है? अंडरलाइन फ्रेज है फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस। अब इसके जैसा मिलता जुलता, यानी कि इसके मतलब के बराबर ही सेम टू सेम इक्वल मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है आपको। कौन सी लाइंस में से? 5 to 15 में से। तो ये देखिए, ये आपकी लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 15 है ना। तो इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जहां मैंने आपको बताया था कि जो क्राफ्ट है, वो जो हस्तशिल्प का उद्योग है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कौन सा वर्ड था आपका?
ये वर्ड लैंग्वेजिंग। लैंग्वेजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होते जाना। तो फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ बढ़ नहीं रही हो, कम होती जा रही हो, उसको बोलते हैं लैंग्वेजिंग। तो इसका आंसर आपका आएगा लैंग्वेजिंग। थर्ड पार्ट आपका है स्टेट एनी टू रीजंस वाई आर्टिसंस आर चूजिंग टू वर्क वाया मशीन्स रादर देन हैंडक्राफ्टेड टूल्स। दो ऐसे कारण बताइए जिसमें कि जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्पकार हैं, वो मशीन के साथ काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय कि अपने हस्तशिल्प के जो उनके छोटे छोटे टूल्स थे उसकी बजाय। पहला आंसर क्या है? इट लेसन्स ट्रेजरी, इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड प्रमोट्स एफिशिएंसी। पहला लेसन्स ट्रेजरी का मतलब कठिन परिश्रम को कम कर देता है, तो उसमें जो मेहनत है वो कम लगती है। इंक्रीजेस प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैंडीक्राफ्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी ज़्यादा तैयार होते हैं। एंड प्रमोट्स एफिशिएंसी, और जो काम वो है वो और अच्छे तरीके से होता है। दूसरा आपका रीज़न क्या है? द मशीन्स रिड्यूसेस द टाइम द एफर्ट टेकन बाय द आर्टिसंस एंड प्रोड्यूसेस द सेम गुड्स विद रिफाइनमेंट, दस दिस हैज़ जेपर्डाइज द स्किल ऑफ दिस आर्टिसंस। जो मशीनें हैं वो जो कारीगरों को बनाने में जितना टाइम लगता है उस चीज़ को बनाने में, तो मशीन है जिसको आधे टाइम में बना देती है। तो रिड्यूसेस का मतलब होता है कम कर देना, तो वो मशीन उस टाइम को कम कर देती है जितने टाइम में आर्टिसन अपने हाथ से किसी चीज़ को बनाता। और जो जो गुड्स बनती हैं वो और ज़्यादा रिफाइनमेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा खूबी के साथ बनती हैं और ज़्यादा सफाई के साथ बनती हैं। दस दिस हैज़ जेपर्डाइज द स्किल्स ऑफ द आर्टिसंस। इससे क्या हो गया है कि जो इन कारीगरों की जो कुशलता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फोर्थ है आपका वाई डू द आर्टिसंस नीड टू बी लेयर्ड विद इंसेंटिव्स टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग। अब जितने भी ये कारीगर हैं आपके, इनको एक्स्ट्रा इनकम या फिर जो इंसेंटिव जिसको आप कहते हो कि एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो इसको इससे लालच देने की इसको ज़रूरत क्यों पड़ गई है? एज टीचिंग देयर स्किल एंड क्राफ्ट टू मास प्रोड्यूसर्स थ्रेटन देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जैसा कि ये अगर अपने स्किल को अगर इनके पास जो टैलेंट है, इनके पास जो स्किल है, इनके पास जो प्रशिक्षण है, उसको जब ये बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ये हस्तशिल्पकार हैं, ये जब अपनी कला को और अपने प्रशिक्षण को जब दूसरों को देंगे तो उनके सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उनके आजीविका का जो साधन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और वो दूसरे लोगों को सिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे सेम कला और प्रशिक्षण जिनके पास होगा तो उनको ही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो जितना कला जितने लोगों के साथ बढ़ जाएगी तो उतने ज़्यादा उनके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है कि वो डरते हैं सिखाने से। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बहुत दूसरे रिवॉर्ड्स या एक्स्ट्रा पैसे देकर उनको मनाया जाए कि वो दूसरे लोगों को ये चीज़ सिखाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही उनको प्रोत्साहित करते हैं। लिस्ट वन लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स। एक ऐसा प्रभाव बताइए जो पड़ेगा अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जो हस्तशिल्प का जो कारोबार है, हस्तशिल्प की जो कला है, उसकी संस्कृति को बचाने में और उसको आगे बढ़ाने में साथ देते हैं। तो द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर सपोर्टिंग द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई अवेयरनेस अबाउट इट। तो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हैं वो इस कला को, जो हस्तशिल्प की कला है, उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? ताकि वो लोगों को इस बारे में जागरूकता फैला सकें। दस एज द सपोर्ट इंक्रीजेज, इससे क्या होगा कि जैसे जितना इन लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, मोर क्राफ्ट्समैन वुड बी गिवन इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशन। और ज़्यादा जितने कारीगर हैं, उन जो हस्तशिल्पकार हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव, एक्स्ट्रा पैसे या रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा कि वो अपनी परंपरा को आगे बनाए रखें। एंड लेस आर्टिसंस वुड चेंज देयर प्रोफेशन सीकिंग बेटर लाइवलीहुड। और भी अच्छी जीविका देखने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो कारीगर हैं वो अपना प्रोफेशन जो है, अपना जो काम करते हैं उसको चेंज नहीं करेंगे। हाउ डज द राइटर जस्टिफाई एन आर्टिस्ट एक्ट ऑफ अबैंडनिंग हर और हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर अ मोर ल्यूक्रेटिव ऑप्शन? ल्यूक्रेटिव मतलब ललचाने वाला। तो इस बात को राइटर जो है वो कैसे जस्टिफाई करता है, कैसे बताते हैं इस बारे में कि एक आर्टिस्ट जो है अगर वो अपनी पारंपरिक कला को छोड़ता है और भी ज़्यादा पैसों के चक्कर में या किसी लालच में अगर वो छोड़ता है, तो इस बात को राइटर जस्टिफाई कैसे करते हैं, वो कैसे बताएंगे कि ये सही है?
एन आर्टिसन अबैंडनिंग हिज और हर ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर अ मोर ल्यूक्रेटिव ऑप्शन इज जस्टिफाइड। ये एक तरह से सही भी है, पूरी तरह से गलत नहीं है। जस्टिफाई का मतलब पूरी तरह से गलत नहीं है। अगर कोई हस्तशिल्पकार जो है वो अपने परंपरा को, अपनी कला को किसी और ज़्यादा पैसे वाली या और ज़्यादा अच्छा जीवन यापन देने वाली ऑप्शन में या उसमें विकल्प का चुनाव करने के लिए इस पारंपरिक कला को छोड़ देता है, तो क्यों? When it no longer gives them a source of livelihood, क्योंकि जब ये पारंपरिक कला उनकी आजीविका को, उनको जीवन यापन करने में, उनके पैसे कमाने में उतना उनको साथ नहीं दे पाती है। Yes, the loss of the traditional craft is a worrying issue, but it shouldn't be at the cost of their livelihood. ये सही है कि हमारी जो पारंपरिक कला हस्तशिल्प की चलती आ रही है, ये अगर कम होती जाएगी तो ये चिंताजनक विषय है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी पारंपरिक कला को बनाए रखने के लिए उन लोगों को, जो भी हस्तशिल्पकार हैं, उन लोगों के जीवन यापन को मुश्किल कर दें। अगर उनके इसके लिए पैसा मिलेगा ही नहीं तो वो तो उसी तरफ जाएंगे ना जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा या उनका जीवन यापन अच्छा हो पाएगा। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनको ज़बरदस्ती फोर्स करें कि आप अपने हस्तशिल्प कला को पुराने तरीके से ही करिए। तो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ध्यान रखिएगा, टुगेदर वी कैन। तो M2L को सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए।